असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Respected Sri Shiv Shekhar Shukla ji, most revered monks, जो सन्यासी वृंद सन्यासिनी वृंद हैं यहाँ पर, सबको प्रणाम। कभी कभी थोड़ा डर लगता है कि इन सब के सामने हम तो कनिष्ठ हैं इन बहुत लोगों से यहाँ, तो हमको सुनना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। But sometimes I feel it's also a great blessing because they are here to bless and I get courage by their presence. Respected dignitaries, students, guests, and especially the young group here, the Shankara Duta, this wonderful group of young people who have been trained and जिनको हम अभी सुने। It's a great pleasure and an honor to be here with you all this evening. हमें कहा गया था, especially I must also thank Manish Pandey ji. वो कहाँ है? He's somewhere here. So, oh there he is. So he's the most persistent gentleman. उनके वजह से ही आज ये हो रहा है. And he told me, और उनका आग्रह था कि हम हिंदी में बोलें, और हम चाहते भी हैं हिंदी में बोलना, और I will do that also. I will speak in एक अद्भुत मिश्र भाषा में बात करेंगे. इसका कारण यह है कि चाहते ना चाहते हुए भी my हिंदी is very weak. आपको बताते हैं कि हिंदी का क्या हाल है हमारा. बचपन की बात है, क्लास 3 में था तब, और पिताजी एक अच्छी स्कूल में भर्ती करने के लिए ले गए, और वहाँ परीक्षा हुई अंग्रेजी की, मैथमेटिक्स की और हिंदी की भी। और वहाँ जो थे टीचर, वो 10 शब्द हमको दिए लिखने के लिए, तो मैंने लिख दिया 10 शब्द विथ फुल कॉन्फिडेंस, और 10 में से 10 गलत निकला। और वहाँ जो थे वो बोले चलो इसको भर्ती कर लो, तो भर्ती भी हो गए हम। आजकल संभव नहीं है, इतनी कंपटीशन की युग है, क्लास 3 में भर्ती होना उस तरह से। लेकिन my Hindi has not really improved after that. Main reason is मौका नहीं मिलता उधर. I'm in the United States, so all my talks have to be in English. But लेकिन आज I'll speak in a combination, in a very peculiar combination of Hindi and English. कोशिश ये रहेगी कि ना वक्ता को कोई असुविधा हो, ना श्रोता को। तो I'm especially very impressed. इसके बारे में हमने I had heard about it. The Ekatma, the project, Ekatma Nyas ka project. Of course, the statue of oneness. But to see it with one's own eyes, to see you all and to see this, the whole project developing in this way, this is very impressive. Swami Vivekananda had said that I see the future India rising, far outshining all its past glory. वो कहते थे, ऐसा नहीं है कि मैं I imagine it or I want it. He said, I see it. हम देख रहे हैं. And when did he say all this? More than 100 years ago, when we were a colonized country. People were starving. There is an interesting incident when Vivekananda comes to this country. जब वापस आए अमेरिका से, उनके साथ थे सिस्टर निवेदिता, कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहाज से सिस्टर निवेदिता she had heard about India from विवेकानंद, बट उनका जो पहला दृश्य था इंडिया का, भगिनी निवेदिता वो देख रही हैं जहाज से, और फिर स्वामी जी को, विवेकानंद को कहती है, ओ स्वामी हाउ पीसफुल, कितनी शांत सौम्य देश है। और स्वामी विवेकानंद उनको डांटते हैं, कहते हैं कि नहीं, This is the peace of the grave. ये तो कब्रिस्तान की शांति है. People are colonized under a foreign power. ये hall. This is Minto Hall. So we are under a foreign power. People were, starving, superstitious. तो वहाँ शांति, उस शांति का कोई मतलब नहीं है.
तो स्वामी विवेकानंद वांटेड कि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण। आज जो इंडिया अब देख रहे हैं हम, आज का भारतवर्ष, बहुत लोग कहते हैं इतनी सारी समस्याएं हैं। आई फील स्वामी विवेकानंद वुड हैव बीन हैप्पी, ही वुड हैव बीन प्राउड। स्वामी जी जो इंडिया देखना चाहते थे, वी आर ऑन द ट्रैक टूवर्ड्स दैट इंडिया। सो आई ऑफन से इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट यूएसए में आप हर 5 साल में आएंगे तो you will see that's a country little better, little worse. Doesn't make too much of a difference. But every 5 years you come to this India, the India which we have now. It's a new India. There's a tremendous change. A tremendous energy, a tremendous upward movement in our country now. और उसका एक प्रधान कारण और उसका लक्षण भी है ये, that when a nation confidently embraces its own culture, अपना जो सभ्यता है, अपना जो civilization जो है, उसको जब हम अपना लेते हैं with confidence, that gives us a basis for growth, a strong and sure foundation for the future. तो ये हो रहा है, and that's the real importance of this एकात्म न्यास. It's part of the civilizational regeneration and reawakening of our nation. But not only for India. हम जहाँ पर हैं, USA में, न्यूयॉर्क में, स्वामी विवेकानंद तब गए थे, 1893 World Parliament of Religions, and then 1894 he went to New York and established the first Vedanta Society there in New York. उनका एक उद्देश्य यह था कि आचार्य शंकर के जो भाव है, the Advaitic ideas, इसको फैलाना। उनके खुद कंप्लीट वर्क्स में है कि our ideas, we must be ready and confident and strong and spread these ideas among the nations of the world. क्यों? सबके मंगल के लिए, सबके भलाई के लिए। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, ये कोई एक विशेष धर्मीय बात नहीं है। यहाँ पर we are open to all religions. आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, ज्यूइश, जो भी हो आप, वो बुद्धिस्ट, whatever religion, and no religion also. Suppose somebody कोई नास्तिक है. So we are open to everybody of all ideologies, of all religions, of all nations of the world. अभी आपने देखा कैसे विद्वान, सारे पृथ्वी के विद्वान, अभी छोटा सा जो लघु फिल्म थी उसमें हमने देखा अभी अद्वैत की बात कर, एकात्म की बात कर रहे हैं. So this is something that is beneficial not only for India, but it's beneficial for the whole world and for the future civilization of humanity. ये जो काम इधर हो रहा है, आज यहाँ जो मौजूद हैं, especially the young people, it's the seed of the future. So I congratulate you all, और हम congratulate करने वाले कौन हैं? I am very proud and happy and I feel humbled to be a tiny part of this tremendous new awakening. अद्वैत वेदांत और एकात्म, जो समय हमारे पास है उसमें आई विल ट्राई टू से समथिंग. आज कुछ सुनाएंगे आपको और फिर कल फिर से कुछ सुनाएंगे. एकत्व की बात. अब देखिए, अध्यात्म अलग अलग तरह की अध्यात्म होता है. जैसे सनातन धर्म की स्पेक्ट्रम, हम इसको कहते हैं फुल स्पेक्ट्रम रिलीजन. तो इसमें हर तरह की मतवाद है, हर तरह की दर्शन है, हर तरह की रिचुअल. what is everywhere in the world is here, and what is not here is nowhere else in the world, in the thought and culture of our land. So कभी कभी हमको यूएसए में बुलाया जाता है स्कूल्स में हिंदुइज्म के बारे में कुछ बोलने के लिए. तो मैं कहता हूँ उनसे, कभी कभी 1-2 इंडियन बच्चे उधर होते हैं लेकिन बाकी सब तो नॉन इंडियंस हैं, तो उनको समझाने के लिए कि कितनी डाइवर्सिटी, कितनी फैलाव है सनातन की, तो समझाने के लिए कहता हूँ कि आप मान लो यूएसए में जितने चर्च हैं, कई 100 चर्च है वहाँ पर, क्रिश्चियन चर्च, सबको मिला दो, एक मेगा क्रिश्चियन चर्च बनाओ. और जितने जूइश संप्रदाय हैं और जितने इस्लामिक संप्रदाय हैं जो वहाँ पर परंपराएं हैं, सबको मिला के एक मेगा एब्राहमिक रिलीजन बनाओ. सोचो कैसा होगा. तो बच्चों की आंख तो एकदम गोल गोल हो, सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो उसमें कितनी डाइवर्सिटी होगी. और अब सुनो, अभी जो है हिंदुइज्म, सनातन धर्म,
उसके अंदर उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी है ऑलरेडी। सो और बहुत कुछ उधर गया है जो उनको पता नहीं कि यहाँ से गया। एक वंस लॉस एंजलिस में हम ये बोल रहे थे टू स्टूडेंट्स देयर, एंड वन लिटिल बॉय स्टूड अप, छोटा सा लड़का क्लास में खड़ा होके, हम जब बताए योग के बारे में, योग वहाँ बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है, शायद रामदेव बाबा के आने से पहले वहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध था यहाँ से। वो जाके वहाँ योगा बन गई है, लेकिन वो योग ही है। तो मैंने उसके बारे में बताया तो वो लड़का खड़ा होके पूछ रहा है, ओह यू हैव योगा इन इंडिया ऑल्सो। आप समझो क्या बताएं उनको। तो अध्यात्म अलग अलग तरह का अध्यात्म होता है। जैसे एक है भक्ति की जो मार्ग है, भक्ति की जो एक ढांचा है, पैराडाइम जिसको कहते हैं, कि वो कैसी है कि हमको विश्वास करना है। धर्म की गुरु बता दिए हैं, हमारे धर्म के पुस्तक बता दिए हैं, हमारा संप्रदाय हमको बता रहा है कि ईश्वर हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं, फादर इन हेवन, यहोवा हैं। आपको विश्वास करना है, भक्ति करनी है, यू हैव टू सरेंडर, और इससे आपको ईश्वर लाभ हो जाएगा। एकदम ठीक, समीचीन बात, एकदम बढ़िया बात है। लेकिन इसकी मुश्किल ये है कि ये विश्वास पर टिका है, श्रद्धा पर ये खड़ा है। ये दिस इज वन वेरी, इट्स मोस्ट वेल नोन, जो थीइस्टिक ईश्वरवादी जो धर्म है पृथ्वी में, सब इस पर खड़े हैं, विश्वास पर। और कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुश्किल आजकल हो गया कि यू कैन डाउट इट, इस पर आप संदेह कर सकते हैं। कोई अगर कहा कि हम विश्वास नहीं करते, आई डोंट बिलीव इट, आई एम एन एग्नोस्टिक, आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक हूं, तो फिर आप क्या करेंगे? इस मार्ग पर आप शुरू से प्रश्न नहीं कर सकते, शुरू होता है विश्वास से। तो दिस इज अ थीइस्टिक रिलीजन, ये भक्ति की मार्ग है, ये विश्वास श्रद्धा की मार्ग है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मीठी मार्ग है। लेकिन ये मुश्किल है कि आप वहाँ पर बड़े बड़े आजकल नास्तिक हैं, सैम हैरिस, आप डैनियल डेनेट, रिचर्ड डॉकिंस, आप जाओगे उनके लेक्चर सुनोगे, आधा घंटा दिन में सुनते जाओ, 1 महीना में आपका सब विश्वास खत्म हो जाएगा। तो ये मुश्किल है। और जो दार्शनिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ज़्यादातर इस पर विश्वास नहीं करते। उनके पास आप जाओगे तो ये सब बात सुनने के लिए राजी नहीं। आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप बोलोगे हमारे राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, कन्हैया के बारे में, नॉट इंटरेस्टेड। तो इससे अलग और एक मार्ग है, और एक तरीके का अध्यात्म है, जो हम कह सकते हैं अनुभव का मार्ग है, योग का मार्ग है। एक तरह का आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन मैं बना रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा क्यों बना रहा हूँ। ये शांकर सिद्धांत जो है, इसकी विशेषता निकालने के लिए वी मस्ट सी हाउ इट इज यूनिक, डिफरेंट एंड रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। तो दूसरी एक, देयर इज अनदर वे कि विश्वास नहीं, आपको किसी चीज में विश्वास नहीं करना पड़ेगा, आप अनुभव करोगे। विवेकानंद, he actually, this is the kind of spirituality that he first of all emphasized in America. Religion is realization. If God exists, we should be able to see God. ईश्वर हैं तो उनको देख सकेंगे हम, क्यों नहीं देख सकेंगे? If I have an immortal soul, I should be able to feel it. मैं अगर आत्मा हूँ तो इसको अनुभव करना चाहिए। नरेंद्रनाथ विवेकानंद कैसे बनते हैं? वो कलकत्ता में 19th century, late 19th century Calcutta, he goes around asking great religious teachers, sir, have you seen God? ईश्वर को आपने देखा है? अनुभव, you see, अनुभव किया जा सकता है या नहीं, या सिर्फ विश्वास है ये? तो श्री राम, हम सब जानते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस कैसे उनसे कहते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और तुम भी देख सकते हो, तुमको जैसे देख रहा हूं उससे भी स्पष्ट देखा है। तो यह है अनुभव का मार्ग। और स्वामी विवेकानंद gave a lot of emphasis on this. In fact, the first book which he translated and commented upon न्यूयॉर्क में, वो था पतंजलि योग सूत्र। पतंजल योग सूत्र पर उनका विख्यात स्वामी विवेकानंद का जो अंग्रेजी में कमेंट्री है, राजयोग। और वो
न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई थी, और वो अनुभव का मार्ग है। आप ऐसे बैठो, ऐसे आसन लगाओ, ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे प्रत्याहार करो, धारणा ध्यान समाधि लगाओ, आपको खुद अपना अनुभव हो जाएगा। आत्मा है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, ये आपको अपनी अनुभव से आप बोल सकेंगे। सो दिस इज अनदर पैथ, स्पेशल एक्सपीरियंस, एक खास अनुभूति होगी आपका। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस को माँ काली की दर्शन होती थी, तो ये है। एंड इट्स ऑल्सो, ये एकदम समीचीन है, ये बहुत प्राचीन मार्ग है। हमारे देश में कितने बड़े बड़े महानुभव, कितने बड़े बड़े संत हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस तो उनमें से एक हैं ही। अनुभूति की मार्ग, मिस्टिकल एक्सपीरियंस, ये मैं कह रहा हूं एक कारण के लिए, लेकिन इसमें भी एक समस्या ये है कि कोई इसको संदेह कर सकता है। संदेह इसलिए कर सकता है कि ये तो सर्वसाधारण नहीं है। आप देखोगे श्री रामकृष्ण परमहंस को जब माँ काली की अनुभूति हो रही है, माँ काली की दर्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जो खड़े हैं, अब जो उसकी व्याख्या है, अब उसको जो वचनामृत में है, आप देखोगे बाकी सब किसी का नहीं हो रहा है। श्री रामकृष्ण देख रहे हैं माँ काली को, लेकिन हम बाकी सब नहीं देख रहे हैं। इट्स अ स्पेशल एक्सपीरियंस। ये साधना सापेक्ष है, ध्यान सापेक्ष, समाधि सापेक्ष है। तो जिसको, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉमन एक्सपीरियंस, वन कैन डाउट इट, इसको संदेह किया जा सकता है। जो ऐसे योगी हैं, महात्मा है, अनुभवी हैं, उनका एक व्हाट इज द रिएक्शन, जो जनरल पब्लिक की रिएक्शन क्या होती है? पहला रिएक्शन, बाद में तो कहते हैं कि पहुंचे हुए महात्मा है, बड़े हैं, ये अवतार पुरुष है, कुछ भी बाद में कहते हैं, पहले कहते हैं ये पागल है ये एकदम पागल है। और श्री रामकृष्ण को भी वही कहते थे, वो दक्षिणेश्वर का पागल जो पुजारी है, तो लगता तो ऐसा है, साधारण लोगों को लगता है कि ये पागल है। आजकल वो पागल नहीं कहेंगे, आजकल न्यूरोसाइंटिस्ट कहेंगे, अमेरिका में परीक्षण करके, ब्रेन को स्कैन करके कहेंगे कि आपको अनुभव हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपका ब्रेन में कहीं पर स्ट्रोक हो गया है, तो उसके चलते आपको, हाँ, आप अगर टेड टॉक में देखेंगे, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर टेड टॉक आप देखेंगे, यूट्यूब में आप टेड टॉक देखेंगे, तो एक महिला थी, वो न्यूरोसाइंटिस्ट, उनको स्ट्रोक हुआ था, फिर उनको एक तरह का एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वननेस, लेकिन वो स्ट्रोक की वजह से हुआ, कोई अध्यात्म की वजह से नहीं हुआ है। तो ये मुश्किल हो जाती है। और दूसरा चीज़ है, ये सब हम सोच रहे थे वहाँ बैठ के ये सब बोले या ना बोले यहाँ पर अभी अमेरिका में और एक कारण से सबको अनुभूति होती रहती है, वो है ड्रग्स खाने के लिए अभी न्यूयॉर्क में उसको लीगलाइज कर दिया है। तो शाम को 5 बजे आप आश्रम से बाहर निकलोगे, सेंट्रल पार्क उधर है न्यूयॉर्क में, वो सबको आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है सबको बैठ के। तो ये सब है, इधर है पागल है क्या, कोई दिमागी खराबी है, या कोई marijuana लेके बैठा हुआ है, तो कुछ कारण से हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, सो दे कैन डाउट इट। Actual genuine mystical experience is rare, but it is there, it's possible, definitely. There have been mystics in every religion of the world, and in fact the founders of all the religions at the source are these they had these most valuable mystical experiences, but it can be doubted. अच्छा, ये सब बोलने का कारण ये है, अब असली मुद्दे पे आते हैं कि और एक तरीका है, और एक पैराडाइम कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की है, जो ज्ञान का पथ है, जो आदि शंकर, पहली बार गौड़पाद आचार्य तो थे, लेकिन व्यापक रूप से अपने भाष्य से, अपने प्रकरण ग्रंथों से एक ये मार्ग, ये तो बहुत प्राचीन मार्ग है, लेकिन इसको और सुस्पष्ट एक हाईवे बना दिया कि एक ऐसा मार्ग है जो विश्वास पर खड़ा नहीं है, एक ऐसी मार्ग है जो आपको कोई खास तरह का अनुभूति हो सकता है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं है। आप देखिए अद्वैत वेदांत में क्या चाहिए आपको, आप अगर आप दृष्टा हैं और ये सब दृश्य है, इतना अगर सबको है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको नहीं है? एवरीबडी हैज दिस एक्सपीरियंस ऑल द टाइम, वी आर एक्सपीरियंसर्स एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड। दिस मच इफ यू हैव, यू कैन बिगिन अद्वैत वेदांत। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देंगे विथ प्रिसाइज pristine logic, with indisputable logic. ऐसा I have had this experience once.
a neuroscientist, a British lady, वो ऐसे ड्रेस देख के हमको बोले कि you tell me about your religion, आप क्या विश्वास करते हैं हमको बताइए. हम बोले ये विश्वास की बात नहीं है, ये समझ की बात है. And then I explained, I gave my arguments, अद्वैत के बारे में बताया उनको. Then वो प्लेन में पास में बैठी हुई थी, तो बाद में पता चला वो हमसे बात करना शुरू की. Later on, after getting down from the plane in Frankfurt, she said, actually हमको प्लेन में डर लगता है तो किसी से बात करना शुरू करते हैं हम. But after I spoke about Advaita Vedanta for one hour or so, she said, look, I am not convinced. आप जो बोल रहे हैं उससे हम convinced नहीं है. लेकिन this is important. I find no fault in your argument. आपका लॉजिक में कोई फॉल्ट नहीं है. ये अद्वैत वेदांत की खूबी है, खासियत है, जिसके कारण से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, he had said, I think he was the one who said, it's the fairest flower of Indian philosophy, अद्वैत वेदांत जो है. तो ये है कि based entirely on our daily experience, जगना, सोना, स्वप्न देखना किसको नहीं होता? सबको होता है. बस इतना ही चाहिए अद्वैत वेदांत शुरू करने के लिए. अच्छा, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि किसको नहीं है? सबको है. बस इतना ही चाहिए पंचकोश विचार शुरू करने के लिए. So Advaita Vedanta does not ask for any special belief. It does not ask for any special experience, mystical kind of experience. वो सब हो सकता है और जरूरी भी है बाद में साधना की तौर से, लेकिन मूलतः it appeals to reason, it appeals to rationality, it is universal in that sense. जिसके वजह से कितने ही साइंटिस्ट जो on its own merits they like Advaita Vedanta. Recently, आप जानते हैं ओपेनहाइमर जो एटॉम बॉम्ब के जो प्रोजेक्ट के हेड थे, when he saw the first explosion in Trinity, he quoted from the Bhagavad Gita. सिर्फ ओपेनहाइमर नहीं, हमारे वो थे श्रोडिंगर थे, and many others, scientists, philosophers. I can tell you, David Chalmers, who is the head of the Mind Brain Consciousness Unit in New York University, वो उनका नई पुस्तक है रियलिटी प्लस. उसमें पहली बार देख रहे हैं पाश्चात्य दार्शनिक साधारणतः भारतीय दर्शन को नकारते रहते हैं, they ignore it. अभी पहली बार देख रहे हैं मेन स्ट्रीम बुक ऑन कॉन्शियसनेस स्टडीज इनकी, हमारे डेविड चामस की. पहला ही चैप्टर में एक कार्टून बनाया हुआ है और नारद और विष्णु है, जो वो नारद पूछ रहे हैं कि माया क्या है, हमको समझाइए. वो जो कहानी है ना, कृष्ण या विष्णु, कृष्ण, तो श्री कृष्ण फिर उनको माया दिखाते हैं क्या है, वो पूरी कहानी उसका कार्टून बना के वर्चुअल रियलिटी क्या है उसी से शुरू कर रहे हैं. तो इस तरह से उसमें शंकर की बात आई है, सांख्य की बात आई है, बौद्ध जो महान आचार्य रहे हैं वसुबंधु, उनकी बात आई है. This is a standard new book on consciousness studies in the leading analytic philosophy department of the Western world. इसमें भारतीय दर्शन के ऐसी प्रवेश है. Waking, Dreaming, Being. एवन टॉमसन जो प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में, उनकी किताब है वेकिंग, ड्रीमिंग एंड बीइंग. उसमें शुरू किए हैं, इट्स अ बुक ऑन कॉन्शियसनेस स्टडीज. एंड द बिगिनिंग ही स्टार्ट्स, ही सेज दैट consciousness studies is not a new subject. It started 5,000 years ago in India, in the text called the Upanishads. यहाँ तक उन्होंने यहाँ तक कहा है उसके पुस्तक में, प्रोफेसर टॉमसन ने कहा है कि ये उपनिषद इतनी महत्व रखते हैं in human thought. The importance, significance is so much in human thought. मनुष्य की चिंता के इतिहास में इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि we should date our history. World history should be dated not by AD and BC, but before Upanishad and after Upanishad. किताब में I'm quoting from that book. हम लोग साहस नहीं करते ये सब बात कहने के लिए, हमको शर्म आती है. तो साहब जब बोले हैं तब ठीक होगा. अच्छा, अभी तक शुरू नहीं किया मैंने, तो लेट मी गिव. ये सब जो बोल रहे हैं इसका एक नमूना दिखाते हैं.
अद्वैत वेदांत में तो एकदम विस्तीर्ण है, ऐसे बहुत सारे प्रक्रिया हैं। एक वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शंस, दिस इज फ्रॉम द तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें शंकर भाष्य भी है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद आई थिंक देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आल्सो। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली में अद्वैत वेदांत क्या है उसका एक वन स्मॉल सेंटेंस, ये और एक खूबी है अद्वैत वेदांत की कि एक वाक्य में ओम, यही इसमें पूरा अद्वैत वेदांत आ जाता है। एक वाक्य में तत्वमसि, उसमें पूरी अद्वैत वेदांत आ जाती है। इतनी क्लैरिटी है। आप यहाँ कह सकते हैं आपके सामने, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मध्यमक बुद्धिज्म, शून्यवाद जिसको कहते हैं, और बहुत दिन से पढ़ाई की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2 कोर्स किए, लेकिन हमको कोई शर्म नहीं है कहने में, अभी तक हमको ठीक ठीक समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहते हैं वो लोग। लेकिन अद्वैत वेदांत क्या कहना चाहती है वो एकदम क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है, सीधी बात है, तत्वमसि। तैत्तिरीय उपनिषद में पहले जो सेंटेंस है ब्रह्मानंद वल्ली का, ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। पहली सेंटेंस जो है ब्रह्मविदाप्नोति परम, पूरी अद्वैत वेदांत उसमें आ गई। ब्रह्म को जो जान लिया है वो परमार्थ प्राप्त हो गया उसको। अल्टीमेट रियलिटी क्या है, हमको करना क्या है और पाना क्या है, ये तीन प्रश्न सब उसमें आ गया। देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रह्म, कोई ऐसी रियलिटी है ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसको अगर आप जान लेते हैं ब्रह्मवित्, तो आपनोति परम, परमार्थ प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये ब्रह्म है क्या, ये कौन सी बला है, और इसको जाने कैसे, और ये जो परमार्थ प्राप्ति होगी क्या है, क्या मिलेगा हमको इससे, प्रयोजन क्या है, और तीनों। उसके बाद देखिए कैसी सीक्वेंस है, ये ओरिजिनल उपनिषद में, भाष्य तो बाद की बात है, कैसी सीक्वेंस है। पहले ही बोलते हैं, ब्रह्म का डेफिनेशन दे देते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म है दिस इज इन्फिनिट लिमिटलेस एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस, अनंत सत्य और ज्ञान। इसका क्या मतलब है थोड़ा आज देखेंगे और फिर प्रश्न उत्तर में जाएंगे। अच्छा, कैसे जानेंगे, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, ये कवित्व में औपनिषदिक भाषा में कही गई है। सीधी बात यह है, जो इस ब्रह्म को अपने स्वरूप जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूं, इस तरह से जानना है ब्रह्म को, कि ना कि वो ब्रह्म है, उधर ब्रह्म है, कहीं 7वें आसमान में ब्रह्म है, वो सब ठीक बात है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानना है। और क्या मिलेगा, सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति, जो जान लेता है अपने आप को ब्रह्म रूप से, उसकी सर्व कामना पूर्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आजकल वो क्या कहते हैं अमेज़न प्राइम, उसमें आप ऑर्डर डाल दीजिए और सब कामना आ जाएंगे, तो वो उस तरह से नहीं। लेकिन जिसके लिए हम इतनी कामनाओं की पूर्ति की कोशिश कर रहे हैं, जिस तृप्ति के लिए, जो डीप लास्टिंग पीस फुलफिलमेंट मुक्ति जो है वो मिल जाती है। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अटेन्ड व्हेन यू रियलाइज ब्रह्मन। तो ये इतनी सारी बात इसमें कही गई है। अब देखिए रीजन, एक्सपीरियंस, लॉजिक की बात अब देखिए, ये ब्रह्म है क्या। अब देखिए यहां पर कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये कह रहा हूं इसलिए क्योंकि आज का और ये पूरी अभियान का विषय है एकात्मा, वननेस। तो देखिए वननेस कैसे एस्टैब्लिश होती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है पहले शुरू कीजिए, इसको ध्यान से थोड़ा सुनना है। हमको कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में थे, सेंट्रल पार्क में टहल रहे थे, तो कोई पूछा सात्विक सुख और राजसिक सुख और तामसिक सुख में ये फर्क क्यों है। तो हमने ऐसे समझाया, जो रॉक म्यूजिक हो रहा है तो आप ऐसे ही सुनेंगे तो आपके पैर हिलने लगेंगे, हाथ हिलने लगे, नाचने लगेंगे, कोई उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो है, तो वो राजसिक है। पहले ही वो अमृत समान लगता है, बाद में विस्मय हो जाता है। लेकिन सात्विक सुख क्या है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, आपको मेहनत करनी पड़ती है, पहले मेहनत कीजिए, उसके बाद उसका मजा आपको आएगा, और वो द जॉय इज डीपर,
मोर नरिशिंग, मोर लास्टिंग देन से जो पॉपुलर म्यूजिक से है, तो वो सात्विक सुख है। उस तरह से ये जो शास्त्र की बात है, दर्शन की बात है, अद्वैत की बात है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखिए अब अनंत ब्रह्म क्या है? अनंत, एकदम मैथमेटिक्स की तरह है। ब्रह्म को कहते हैं अनंत, जिसकी अंत नहीं है। लेकिन अंत मतलब क्या है? अंत मतलब है जो परिच्छेद है, जो जैसे कोई कटा हुआ है, ससीम है। वेदांत में हम कहते हैं अंत तीन तरह के होते हैं, एक काल का अंत, काल में अंत, एक देश में अंत और एक वस्तु में अंत। साउंड्स डिफिकल्ट बट इट्स वेरी कॉमन सेंस, एकदम एकदम सिंपल चीज है। देश का अंत, देश में जो लिमिटेशन है, देश परिच्छेद जिसको कहते हैं, इसका मतलब इतना ही है, आज आप इधर हॉल में बैठे हैं तो आप बाहर नहीं हो सकते हैं, अगर बाहर हैं तो हॉल के अंदर नहीं हो सकते हैं, भोपाल में है तो दिल्ली में नहीं हो सकते हैं। हम हर चीज एक लोकेशन है, एक जगह में है, एक जगह में है तो दूसरी जगह नहीं है। उसकी शुरुआत और अंत स्पेस, आकाश में एक जगह सीमित है। इसको कहते हैं देश परिच्छेद। ये एक तरह का अंत है, लिमिटेशन। और दूसरा अंत क्या होता है? काल परिच्छेद, टाइम लिमिटेशन, शुरुआत और खत्म। सबका जन्म होता है और सबका मृत्यु होती है, तो वो परिच्छेद हो गया लिमिटेड इन टाइम, एक समय शुरू हुई, एक समय खत्म। ये लेक्चर भी आई एम गारंटिंग कि खत्म होगा, डोंट वरी। तो इसका एक लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन, शुरू है, अंत है। हर चीज का जन्म है और विनाश है, बिगिनिंग एंड एन एंड। दिस इज कॉल्ड लिमिटेशन इन टाइम, काल में अंत। और वस्तु में अंत, ये एक बहुत दिलचस्प एक तरह का विचार है कि हर वस्तु अपने से एक है और बाकी सबसे अलग है। ये वस्तु परिच्छेद कहते हैं इसको। तो ये टेबल है तो ये चेयर नहीं हो सकती, ये घोड़ा नहीं हो सकता है, गाय नहीं हो सकती, गाड़ी नहीं हो सकती, एरोप्लेन नहीं हो सकती है, बस टेबल है, ये पोडियम है। हर आदमी वही है, बाकी सबसे अलग है। अब देखो चारों ओर, इसको कहते हैं वस्तु परिच्छेद, वस्तु में अंत। अंत क्यों कहते हैं, लिमिटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे आप सबसे अलग हो जाते हो। आप एक ही चीज हो, बाकी सब नहीं हो। सब विश्व ब्रह्मांड में बाकी सब आपसे अलग है, जुदा है, डिफरेंट, भेद है। तो ये तीन तरह के अंत हुए। जगत में तो कितने सारे भेद है। हम बात कर रहे हैं एकता की, एकात्म की। कहाँ है एकात्म? ये तो देखिए 100 लोग इधर बैठे हैं, सब एक दूसरे से अलग है। और आप जो चेयर पर बैठे हैं वो चेयर आपसे अलग है, ये हॉल बाहर से अलग है, भोपाल दिल्ली से अलग है, भारत यूएसए से अलग है, नारी और पुरुष अलग हैं। फिर से सोच आ रही है बोले या ना बोले, बोल ही देते हैं। न्यूयॉर्क में हम लोग यहाँ व्याकरण के सब लोग हैं, आप जानते हैं लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुंगलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन न्यूयॉर्क जहाँ से हम आ रहे हैं, आपको हैरानी होगी सुन के, जेंडर कितने तरह के हैं। हमको याद था कि 23 टाइप्स है, लेकिन फिर आज सुबह गूगल करके देख लिए, नहीं अभी 31 हो गया है। 31 टाइप्स का जेंडर होता है, आपको सुन के हैरानी होगी। और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जिसको जैसा लगा अपना एक बना लिया जेंडर, और वो लीगल लॉ में पास किया हुआ है उधर। तो ये तो भेद, कहाँ एकता है, डिफरेंस। तो अब अनंत, ये हुआ अंत। अनंत क्या होता है? अनंत ये होती है कि देश में अगर कोई चीज ससीम नहीं है, देश में अगर कोई चीज देश परिच्छेद नहीं है, तो क्या होगा उसका? ऐसी कोई देश नहीं होगी जिसमें वो नहीं रहेगा। देश में वो सर्वव्यापक हो जाएगा, जिसका देश में अंत नहीं है। ब्रह्म को कहते हैं अनंत, तो ब्रह्म देश में उसका कोई सीमा नहीं है, तो सर्वव्यापक है। काल में अगर किसी चीज का अंत नहीं है तो क्या होगा? ऐसी कोई समय नहीं होगी जब वो नहीं रहेगा। उसका कोई जन्म था, उससे पहले नहीं था, वो मृत्यु होगा, उसके बाद नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। वो हर वक्त था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, त्रिकाल अबाधित रहता है वो।
तो इसको कहेंगे नित्य हो जाता है। ब्रह्म अगर अनंत है, काल में अनंत है, तो नित्य है। और वस्तु में अनंत है, यह बहुत दिलचस्प बात है। वस्तु में अनंत मतलब क्या होता है? वस्तु परिच्छेद मतलब वो सबसे जुदा है, और वस्तु में परिच्छेद नहीं है। वस्तु अनंत अगर है तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो ब्रह्म से जुदा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ब्रह्म से जुदा है। अगर ब्रह्म से भेद नहीं है किसी वस्तु की, तो द्वितीय वस्तु नहीं होती है ब्रह्म से। ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है, यानी द्वितीय वस्तु नहीं रहती है ब्रह्म से अलग कोई, अद्वितीय अद्वैत आ जाती है। तो देखिए, एक शब्द अनंत, उससे 3 नतीजे निकलते हैं। ब्रह्म सर्वव्यापक है, देश परिच्छेद नहीं है, देश परिच्छेद शून्य। ब्रह्म नित्य है, काल परिच्छेद नहीं है, काल परिच्छेद शून्य। ब्रह्म अद्वितीय है, अद्वैत है, वस्तु परिच्छेद शून्य, अनंत। तो ब्रह्म ऐसी चीज है जो हर जगह है, हर समय है, और उससे कोई दूसरा चीज है ही नहीं। यानी सब चीज किसी तरह से, सब वस्तु किसी न किसी तरह से वो सब ब्रह्म ही है। अब मुश्किल देखिए आएगा, लॉजिकल प्रश्न उठेगा, ये सब तो बहुत बढ़िया है महात्मा जी, बट इज इट रियल? ऐसी कोई ब्रह्म नाम की कोई चीज है कि ये सिर्फ जवाबी खर्च है? क्या बोलते हैं, स्पीच, यू जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। इसमें कोई एक्चुअल रियलिटी इसमें है कि नहीं? अब देखिए, अनंत उसके साथ जोड़ दिया, सत्यम ज्ञानम। ये ब्रह्म क्या है? सत्यम, व्हाट इज रियल। अब देखिए, रियल किसको मानते हैं हम? अब एकदम जस्ट कॉमन सेंस, ये जो आदमी, इतने लोग बैठे हैं, ये रियल है। हम खुद बैठे हैं, हम रियल हैं। इधर चेयर टेबल हॉल है, ये रियल है। बाहर आकाश वायु, ये सब रियल है। दीज आर ऑल रियल, ये सब सत्यम है। अब देखिए, सत्यम, ये सब कुछ सत्यम है हमको लगता है, लेकिन बोल भी दिया इसके साथ अनंतम, ऐसी सत्य जो सर्वव्यापक है, जो नित्य है, जो अद्वैत है। अब देखिए, जिसको हम लोग सत्य मानते हैं, ये टेबल, ये मोबाइल फोन, ये कपड़ा, ये क्या सर्वव्यापक है? कभी नहीं। आप जो जितना भी मोटा आदमी हो, एक चेयर, ज्यादातर 2 चेयर लेके बैठेगा। सर्वव्यापक तो है नहीं। इस हॉल में कहीं पर बैठा होगा। नित्य कोई चीज यहाँ है जो जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जिसका अंत ही नहीं है, ऐसा तो कोई चीज नहीं लगता है। तो और अनंत कहते हैं, अद्वितीय, ऐसा कोई चीज है, सत्य है, जिससे अलावा कोई दूसरी चीज है नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं लगती। सब तो भेद इधर है। तो देखिए, अब क्या क्या जाता है अद्वैत वेदांत में, कि देखिए, जिसको हम लोग सत्य मानते हैं वो सब ससीम है, परिच्छेद है, छोटा है, देश में, काल में, वस्तु में लिमिटेड है। लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज क्या है जो सर्वव्यापी, नित्य और अद्वैत है। अब अगर हम विचार करके देखें, जिसको हम सत्य मानते हैं यहां पर सब जगह, उसका एक एक्सपीरियंस हम सबको है कि ये टेबल है, ये मनुष्य है, ये हॉल है, ये आकाश, ये वायु, ये शहर है, ये पृथ्वी है। ये जो है, होना, अस्ति, ये सब में अनुस्यूत है। इसको इस तरह से सोचे कि समुद्र में लहर है, बुदबुद है, फेन है, वेव्स एंड बबल्स एंड फोम, लेकिन वो सब पानी है। ऑल ऑफ इट इज वाटर। अगर ऐसा नहीं सोचे कि लहर है पानी, लेकिन सोचें कि पानी ही लहर रूप में दिखाई दे रही है, बात तो सच्ची है, पानी ही लहर रूप में दिखाई दे रही है, पानी ही बुदबुद रूप में दिखाई दे रही है। अब उसी तरह से सोचिए, ये जो अस्तित्व है, इधर चारों ओर हम अनुभव कर रहे हैं कि है, ये जो अस्तित्व है, ये यहाँ पर 100 लोगों के रूप में वही अस्तित्व वो दिखाई दे रही है। चेयर टेबल के रूप में, आकाश के रूप में, वायु के रूप में, सब के रूप में अस्तित्व दिखाई दे रही है इधर। और ये अस्तित्व अगर आप सोच के देखें, इसकी कोई देश में सीमा नहीं है। जहां भी देश है वहां अस्तित्व है। आप मान लीजिए एम्प्टी स्पेस, लाखों लाइट ईयर दूर में स्पेस, स्पेस तो है, आकाश तो है,
तो अस्तित्व सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अस्तित्व नहीं है। अच्छा, नित्य, ये अस्तित्व नित्य है, वस्तु आती जाती है। जो शंकर भाष्य है भगवत गीता की, जो द्वितीय अध्याय की जो 16वीं श्लोक है, नासतो विद्यते भाव, उसका जो शंकर भाष्य है वो तो एकदम मतलब अद्वैत वेदांत का हृदय है, वो दार्शनिक हृदय है। उसमें दिखा रहे हैं कि सत वस्तु जो है, वो जो ये चेयर टेबल आदमी आते और जाते, ये नाम रूप बदलते रहते हैं, लेकिन सत रह जाती है। सब नाम रूप खत्म हो गए, विश्व ब्रह्मांड की प्रलय हो गया, तब भी सत है, प्रकाशित नहीं है। तो दिस एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, बीइंग इटसेल्फ, जिसको संस्कृत जो वेदांत में सत और यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम कहा है, इसका प्रक्रिया है अद्वैत वेदांत में, इसको कहते हैं लक्षणावृत्ति से। सीधी तरह से नहीं निकलती, तो उसको लक्षणावृत्ति से, सत्यम का अर्थ चेयर टेबल नहीं है, लेकिन जो सत, प्योर एग्जिस्टेंस, जो अनंत है, जो देश में ससीम नहीं है, काल में ससीम नहीं है, और वस्तु में वो अद्वैत है, तो ये सत वस्तु। इसी तरह से ये होमवर्क है, चित ज्ञानम ब्रह्म, तो ज्ञान कैसे अनंत हो सकता है देश काल वस्तु में, यह होमवर्क के तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए, लॉजिकली इट हैज बीन शोन दैट देयर इज समथिंग अनडिनायबली which fulfills the category of the infinite, limitless existence. उसी limitless existence को कहा जाता है कि ये छांदोग्योपनिषद है, तत्त्वमसि, तत्सत त्वमसि। वो सत कौन सा है? वो उधर इधर चारों ओर है, सब जगह है, सब अनुभव में है, वो हमारा अपना आपा है, वो हम ही है। ऐसा नहीं है कि हमारा अस्तित्व है, हम ही अस्तित्व हैं, और ये नाम रूप ये सब बदलते रहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ तत्त्वमसि, कि तुम ही ब्रह्म हो। तो इसी तरह से, और ये कोई थियोरिटिकल बात नहीं है, ये हमको बाद में समझ में आया कि अद्वैत दर्शन तो है, लेकिन दर्शन से भी कुछ आगे बढ़कर है। इनफैक्ट इट इज एक्चुअली अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये जो अभी है एकदम सीधा सत्य है, हमारे सामने है, पीछे है, आगे है, ऊपर है, सर्वत्र है, हमको दिखाई नहीं देता है, बस समझ में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है, लेकिन इट्स ऑलरेडी अ फैक्ट। ये प्रत्यक्ष है, ये अपरोक्ष है, ये साक्षात अपरोक्ष है, एकदम सीधी। लोग कहते हैं ये थियोरिटिकल है, हम कहते हैं जो जिसको आप फैक्ट मानते हैं कि ये जगत फैक्ट है, दिस वर्ल्ड, द फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लाइक अ थ्योरी कंपेयर्ड टू ब्रह्मन विच इज मोर ऑफ अ फैक्ट। ऑल फैक्ट्स डिपेंड अपॉन दिस। ये जो हम चैतन्य है, कोई पूछता है इसको अनुभव कैसे करें, तो अनुभव जितने हमारे अनुभव हो रहे हैं उस चैतन्य पर निर्भर है, उससे पहले इसको प्रमाण कैसे करें, जितने हमारे प्रमाण हैं वो सब उसको पहले मानकर फिर प्रमाण काम करते हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि ये जो अद्वैत दर्शन है ये completely dependent on, completely based on reason and on experience. ये एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी है जो सब ग्रहण कर सकते हैं। सब धर्म में, सब जो धर्म को मानते भी नहीं है, अभी अमेरिका में द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्शन ऑफ यंग पीपल, वो कहते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। SBNR, न्यू टर्म इज देयर, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। आप किस धर्म से, विच रिलीजन डू यू बिलोंग टू? दे विल से नो रिलीजन। तो आप स्पिरिचुअलिटी नहीं मानते, अध्यात्म नहीं मानते? हाँ मानते हैं, लेकिन किस तरह का अध्यात्म? स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, SBNR। और इस साल के जो आंकड़े हैं उस पर पता चलता है दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इन अमंग अमेरिकन यूथ। तो ये एक ऐसा स्पिरिचुअलिटी है विच इज एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ये एकात्म का जो प्रकल्प लिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, और आप सबके सहायता से हम सब इसमें हैं, शामिल हैं। दिस इज समथिंग दैट वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट फर्स्ट। हम सबको बेनिफिट मिल रहा है, और we will give this benefit to others across the country and across the world. आज इतना ही, फिर कल सुनाएंगे और कुछ। धन्यवाद। Thank you very much.